Hello learners, welcome to our channel We Educate. As you know that the budget is around the corner, and if you are not a student of commerce background, you might face some problem in understanding the technical terms related to budget. But you don't need to worry because this video will help you in understanding the budget better because this video covers the basic concepts related to budget. So let's begin. So firstly, you need to understand what is a budget. So a budget is an annual financial statement showing item-wise estimates. Estimates मतलब अनुमानित. अनुमानित खर्चा जो गवर्नमेंट कर सकती है और अनुमानित पैसा जो वो जनरेट कर सकती है उस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में. अब आप सोच रहे होंगे ये फिस्कल ईयर क्या है? सो फिस्कल ईयर इज अ टाइम पीरियड जो 1 ईयर के पीरियड को डिफाइन करता है. 1 साल का ये समय होता है जिसमें गवर्नमेंट ये निर्धारित करती है कि वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और कितना एक्सपेंडिचर वो कर सकती है. इसी पीरियड को कहते हैं फिस्कल ईयर. ठीक है, फाइनेंस की भाषा में. अब हम ये बात करते हैं कि इंडिया में ये फिस्कल ईयर कब से कब तक है. ठीक है, तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है. इस बीच में गवर्नमेंट को डिफाइन करना होता है कि वो कितना अपना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रखती है और कितना एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर वो करती है. ओके, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बजट एंड अ फिस्कल ईयर. So to begin with, we need to understand that the Indian budget comes under Article 112 of the Indian Constitution, and under this article, it is the President who is responsible for submitting the budget to the Lok Sabha. Like he gives the permission to present the budget. Now, when we talk of presentation of the budget, we need to know the day on which the budget was presented. So earlier, the last day of February was decided as the presentation day of the budget till 2016. बट 2017 में क्या हुआ कि अरुण जेटली जी ने इस चीज़ को चेंज कर दिया. उन्होंने लास्ट डे से फर्स्ट डे कर दिया. इसलिए अब बजट 2017 के बाद से फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को प्रेजेंट होता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. Now moving on to the next one, that is, when was India's first budget presented? So it was introduced by James Wilson, who was from the East India Company. At that time, India was controlled by the Britishers. So James Wilson was the one who presented India's first budget, and it was introduced on 7th April 1860. Now, this was the time when India wasn't independent. When we talk of India's first independent budget, then it was introduced on 26th November 1947, and by whom it was introduced by R.K. Shanmugam Chetty. So, talking about the budget process in India. So, budget process in India or budget preparation in India goes through 4 stages. First is budget formulation, second is budget enactment, third is execution, and the fourth is budget oversight. Now, in this video, we will majorly focus on the first 3 steps. And, the fourth one is the minor one, but the important one. So, I'll discuss it here itself in this slide. Okay. So, this budget oversight is also known as budget audit, under which it is a process or stage where the budget which is being enacted, executed, formulated, all this, all these processes are examined, like whether the budget is operating effectively or not, whether it is benefiting the sectors on which it was, the allocations were done, how the implementation is done, or the revenue which was, the revenue which came. Talking about the first step, that is budget formulation. Budget formulation का मतलब होता है preparation of the budget. अब budget होता क्या है, आपको पता है कि एक गवर्नमेंट है उसके अनुमानित एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, मतलब कितना खर्चा वो कर सकती है इस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में और कितना रेवेन्यू वो अर्न कर सकती है. तो इसकी पहली स्टेप ये होती है प्रिपरेशन ऑफ द बजट की कि बजट सर्कुलर्स इशू होते हैं. अब ये बजट सर्कुलर क्या होता है? ये गाइडलाइंस होती हैं और या रूल्स एंड रेगुलेशंस आप कह सकते होते हैं, जिसके अंडर मिनिस्ट्रीज को या वेरियस डिपार्टमेंट्स को अपनी डिमांड्स को रखना होता है कि वी थिंक दैट इतना एलोकेशन हम कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, और ऐसा कि हाँ इतना रेवेन्यू हम मे बी इस फिस्कल ईयर में अर्न कर सकते हैं. तो ये स्टेट करना पड़ता है. अब ये भी मैं आपको बता दूं कि बजट सर्कुलर्स इशू कब होते हैं.
तो ये इशू होते हैं अगस्त के एंड में और 15 सितंबर से पहले इशू हो जाते हैं ये। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इनको इशू कौन करता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट इज ऑफन आस्क्ड कि कौन सी मिनिस्ट्री से इशू करती है। तो आपको जानना जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द वन टू इशू देम। अब ये किसको इशू होते हैं, कौन करता है, तो पता चलेगा किसको इशू होते हैं। तो इशू करते किसको होते हैं, ये मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स को। इट्स वेरी ऑब्वियस क्योंकि यही एक सोर्स है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का उसकी एक इकोनॉमी के लिए। उसके बाद स्टेक होल्डर्स जैसे कि फार्मर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गए। ये क्यों स्टेक होल्डर्स के, मैंने कुछ स्टेक होल्डर्स के नाम लिए इसलिए लिए क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी इकोनॉमी 3 सेक्टर्स पे वर्क करती है, मतलब मेजरली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो यही जब 3 मेजर सेक्टर्स हैं रेवेन्यू आने के एक इकोनॉमी के लिए, तो जाहिर सी बात है उनके स्टेक होल्डर्स का मेजर से होता है बजटिंग प्रोसेस में कि आप आखिर क्या डिमांड क्या है आपकी, क्या चाहते हैं आप कि इस बार का बजट कैसा होना चाहिए, है ना। तो वो अपने डिमांड्स को नाउ आफ्टर द प्री बजट मीटिंग्स द फाइनेंस मिनिस्टर कंबाइंस दीज बजट प्रपोजल्स because the budget is a combination of revenue and expenditure both. So both these revenue and expenditure budget proposals are being combined, and after it is being combined, the finance minister takes the permission from the president for presenting the budget in the Lok Sabha. Once the president gives a nod to the finance minister for presenting the budget, there is this halwa ceremony. It's a very, you might be wondering what is this halwa ceremony. So halwa ceremony, under this halwa ceremony, the halwa is being prepared and it is being distributed to the people who were a part in preparing this budget. Okay, so this halwa is celebrated because this marks the printing of budget documents. Okay, after the budget documents are printed, the presentation of budget in the parliament takes place and the finance minister presents the budget in the Lok Sabha. Okay. Talking about the second process, that is budget enactment. So once the finance minister presents the budget in the Lok Sabha, the budget has to be approved by the Lok Sabha. और ये अप्रूवल का मतलब होता है कि जो 2 बिल होते हैं, फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल, अगर इन दोनों बिल को लोकसभा अप्रूव कर देती है कि यस ओके, देन ओनली जो ये बजट प्रपोज किया गया है बाय द बजट प्रेजेंट किया गया है वो तभी इनैक्ट होगा जब ये 2 बिल पास होंगे। Now आप सोच रहे होंगे what is a finance bill? So let me tell you about it. So finance bill comes under article 110, मतलब इस आर्टिकल के अंदर ये बिल आया। अब इसमें गवर्नमेंट को क्या करना होता है कि ये स्टेट करना होता है कि अगर वो कोई चेंज कर रही है इनकम टैक्स स्लैब में, लाइक अभी ऐसा लोग अज्यूम कर रहे हैं या ऐसा परसेप्शन है या लोग सोच रहे हैं कि इस बार के जो बजट अपकमिंग बजट है उसमें क्या होगा कि जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है, टैक्स की माफी जो होती है वो पहले अब 5 लाख तक कर दी जाएगी। मतलब अगर आप 5 लाख से कम कमाते हो तो अब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अगर ऐसी कुछ चीजें चेंजेस हैं जो करना चाह रही है गवर्नमेंट, या कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना चाह रही है, या प्रीवियस वाले को रिपील का मतलब होता है कि रिमूव करना, खारिज करना, तो अगर ऐसा कुछ करना चाह रही है, जो टैक्सेशन से रिलेटेड जितने भी चेंजेस हैं उनको फाइनेंस बिल के थ्रू गवर्नमेंट को लोकसभा के सामने पेश करना पड़ता है। ओके, दिस इज कॉल्ड फाइनेंस बिल। So after passing the financial bill, it's time for the approval of the appropriation bill. Ab appropriation bill comes under the article 114 and it gives the government the power to withdraw funds from the consolidated fund of India for meeting the expenditure. मतलब कि अगर गवर्नमेंट को जैसे गवर्नमेंट ने जाहिर सी बात है बजट में एक्सपेंडिचर स्टेट किए होंगे कि वो इतना एलोकेशन, इतना पैसा इस सेक्टर में खर्च करेगी, इतना पैसा इस सेक्टर में लगाएगी, तो वो चीज़ उसने प्रेजेंट तो कर दी कि इतना एलोकेशन होगा, लेकिन उसके लिए अब पैसा चाहिए, लाइक फंड चाहिए उसे, राइट, पैसे चाहिए। तो वो पैसे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसे मिलते हैं। तो इस अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू अगर ये अप्रोप्रिएशन बिल लोकसभा पास कर देती है तो गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने की इजाज़त मिल जाती है और इसके बाद गवर्नमेंट इसमें से पैसे लेके एलोकेट कर सकती है जिन भी सेक्टर्स में उसे करना है। नाउ यू माइट बी वंडरिंग व्हाट इज दिस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये एक ऐसा फंड है जिसमें
गवर्नमेंट जितना भी रेवेन्यू अर्न करती है वो सब इसी फंड में स्टोर होता जाता है. लाइक रेवेन्यू अर्नड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, या बोरो कर ली, कोई मनी लोन ले लिया, तो ये सारा पैसा इस फंड में जाके गवर्नमेंट का फ्लो होता है. ठीक है, मतलब इसमें स्टोर होता है. और जब भी मन चाहे गवर्नमेंट, मतलब जब भी अगर उसको जरूरत हुई, गवर्नमेंट को मन चाहे नहीं तो जरूरत हुई, तो वो इसमें से विड्रॉ कर सकती है, लेकिन उसे पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है इस फंड के लिए. और इस फंड के अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट से जो अप्रूवल लिया जाता है वो किस बिल के थ्रू लिया जाता है? इसी अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू. ओके. Talking about the third process, that is execution. So once the Lok Sabha has or the Parliament has approved the bills, both the bills, that is the financial and the appropriation bill, it's time for the execution part. Now which means कि approved budget को अब execute या लागू किया जाएगा. तो इसमें क्या होता है कि the executive department is given the permission to collect the funds as well as the expenditure which it has decided on the approved projects. ठीक है, सारे डिपार्टमेंट जिन्होंने सोचा था कि हम इतना पर्टिकुलर अमाउंट एलोकेट करेंगे एनर्जी सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर और एनी अदर सेक्टर, तो वो एलोकेशन करना, वो कि उन्हें परमिशन मिल जाती है और वो एलोकेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं अब. ठीक है, जिन भी प्रोजेक्ट्स में उन्होंने स्टेट किया था कि हम इतना एलोकेशन करना चाहते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन प्रोसेस. मूविंग ऑन टू द कंपोनेंट्स ऑफ बजट. लाइक अब जो बजट है वो टू मेजर उसके डिविजन्स हैं. एक है बजट रिसिट्स एंड दूसरा है बजट एक्सपेंडिचर. ये तो मेजर हेडिंग्स हैं. अब उसके बजट रिसिट्स के अंडर भी रेवेन्यू रिसिट आती है और कैपिटल रिसिट आती है, और बजट एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है. सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल. Now if we talk about the first component, that is budget receipts. Now what are these receipts? So it is the list of income which or the revenue which would be generated by the government from different sources. मतलब कि कितना उस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में जो एक गवर्नमेंट कितना पैसा कलेक्ट कर पाई, ओके, अलग अलग सोर्सेज से, उसे कहते हैं बजट रिसीट्स. अब ये बजट रिसीट जो होती हैं ये नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब जो पैसा आ रहा है वो नॉन टैक्स भी हो सकता है, या टैक्स से भी आ सकता है, या कैपिटल रिसीट से भी आ सकता है. ठीक है, तो इसीलिए बजट रिसीट्स को दो मेजर पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है, दैट इज रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट. वील डिस्कस इट ऑन अ हाई नोट इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो बजट रिसीट्स का सबसे पहला मेजर पार्ट जो है रेवेन्यू रिसीट, उसको डिस्कस करते हैं. सो जो रिसीट्स या जो रेवेन्यू या इनकम गवर्नमेंट का उसके लिए लायबिलिटी ना क्रिएट करे और ना ही उसके एसेट्स को रिड्यूस करे, उसे रेवेन्यू रिसीट कहते हैं. मतलब इन सिंपल टर्म्स यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि लायबिलिटी और एसेट क्या होता है. एसेट मतलब जो गवर्नमेंट के लिए आगे जाके चल के प्रॉफिट लाए, वही लायबिलिटी जो उसके लिए आगे चल के बर्डन बन जाए, बोझ. ठीक है, तो इन्हें इसे लायबिलिटी और एसेट कहते हैं. तो रेवेन्यू रिसीट्स ना ही लायबिलिटी क्रिएट करती हैं और ना ही रिड्यूस करती हैं एसेट्स को. ठीक है, अब ये जो रेवेन्यू रिसीट हैं वो दो मेजर सोर्सेस से आती हैं, टैक्स से आती हैं या नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है. सो फर्स्ट वील डिस्कस अबाउट टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू भी अब दो मेजर पार्ट में है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स. सो फर्स्ट आई टेल यू मोर अबाउट डायरेक्ट टैक्स. जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो किसी इंडिविजुअल की इनकम पे या प्रॉपर्टी पे लगता है. लाइक उसकी जमीन पे, उसके घर पे वो जो टैक्स लगता है उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं. मतलब वो अपना बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट कर ही नहीं सकता. वेल्थ टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सारा उसी को झेलना पड़ेगा जिसकी वो कंपनी है, जिसका वो लैंड है, जिसकी वो जमीन है. ठीक है, अपना बर्डन वो शिफ्ट नहीं कर सकता. उसके बाद डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है. प्रोग्रेसिव का मतलब ही होता है बढ़ना. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे जैसे इनकम बढ़ती है किसी इंसान की, वैसे वैसे उस पे उस टैक्स लगना भी ज्यादा होता है. जैसे अगर वो कोई इंसान 50,000 कमाता है एक मंथ में, तो उस पे जो टैक्स लगेगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो इंसान 1,000 कमाता है एक मंथ में. ठीक है, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की. इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि लगता है एक इंसान की
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ब्रेड का पैकेट खरीदा, या आपने कोई पोटैटो चिप्स का पैकेट खरीदा, फ्रूटी खरीदी, या ऐसा कुछ भी खरीदा जो आप कंज्यूम या मतलब यूज करने के लिए आपके डेली की चीजें खरीदी, तो उन पे जो टैक्स लगता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसका जो बर्डन है वो उस पे नहीं लगता जिस पे वो इम्पोज हुआ एक्चुअली। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एक ब्रेड है, ब्रेड का पैकेट 10 रुपए का था, लेकिन उस पर टैक्स जब लगा तो वो हो गया पूरा 15 रुपए का, मान लीजिए, ठीक है। अब जब वो सेलर उस ब्रेड को कंज्यूमर को बेचेगा तो वो जो कंज्यूमर है वो उसे 15 रुपीज पे करेगा, राइट। तो ये शो कर रहा है कि जो टैक्स का बर्डन सेलर पर लगा था वो उसने किससे वसूल किया, कंज्यूमर से। तो मतलब इनडायरेक्टली जो बर्डन था टैक्स का वो कंज्यूमर पे पड़ा, ना कि उस सेलर पे, ठीक है। तो इसी को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो प्रोपोर्शनल टैक्स है। प्रोपोर्शनल मतलब सबके लिए इक्वल, चाहे आपकी इनकम 50,000 रुपए हो पर मंथ या 1,000, सबको उतना ही टैक्स पे करना है। ऐसा नहीं कि कोई कम पे करेगा कोई ज्यादा, वो सबको इक्वली देना पड़ेगा, ठीक है। Now we'll talk about the second source, that is non-tax revenue. Non-tax revenue includes all the revenue that is not collected from taxes, like the revenue collected by imposing fines, fees, aid, interest, e-sheets. All these are part of non-tax revenue, and they both together make the part of revenue receipts. Now we will be talking about capital receipts, that is the second major portion of the budget receipts. Capital receipts either create liabilities for the government or they reduce assets of the government, which means कि वो आप गवर्नमेंट के लिए या तो लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है, बर्डन क्रिएट कर रही है, और साथ ही साथ उसके एसेट को रिड्यूस करती है। अब देखिए, जो कैपिटल रिसीट्स हैं, दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू फॉर अ सिंपलर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज नॉन डेट एंड डेट। डेट मीन्स कर्जा, एंड ओके, सो डेट का मतलब जो ऐसी रिसीट्स, जो ऐसा रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आ रहा है जो उसके लिए कर्जा बढ़ा दे, that is called as debt receipts. And the receipts which do not create any debt for the government, that is non-debt. Now the non-debt receipts include recovery of loans and advances, which means मान लीजिए जो गवर्नमेंट है उसने किसी को लोन दिया हो। अब अगर लोन दिया होगा और उसने गवर्नमेंट ने वो अपना लोन वापस रिकवर कर लिया उससे, या उसने ही गवर्नमेंट को वापस कर दिया वो लोन उसका विद इंटरेस्ट, तो ये एक सॉर्ट ऑफ उसके लिए एसेट का रिडक्शन ही हुआ, क्योंकि अब उसके पास पहले ये क्या था कि उसने लोन दिया तो उसे उसके लिए एक एसेट की तरह काम कर रहा था कि हाँ अब इससे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अब तो वो मतलब वो टॉपिक ही खत्म हो गया, क्योंकि मतलब ये लोन ही रीपे हो गया। तो एक सॉर्ट ऑफ एसेट का रिडक्शन ही हुआ ये, बिकॉज नाउ देर इज नो होप फॉर एनी इंटरेस्ट और एनी प्रॉफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डील। ओके, नाउ सेकेंड इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को बेचती है या अपने एसेट्स को बेचती है। एसेट्स में शेयर्स आते हैं, लाइक शेयर्स हो गया, या अपनी कंपनी का कुछ पोर्शन जब गवर्नमेंट सेल करती है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ एसेट रिडक्शन ही हुआ, and therefore it is included in non-debt creating receipts. जब हम दूसरे पोर्शन की बात करते हैं, दैट इज डेट रिसीट्स। डेट मतलब कर्जा बढ़ा रही है जो रिसीट्स, वो उसमें आता है मेन जो है वो बोरोइंग। जब गवर्नमेंट बोरो करती है तो उसके पास पैसा तो आ रहा है, यू नो, इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग, लोन लिया उसने तो पैसा तो आ रहा है, लेकिन उसके लिए एक लाइबिलिटी जरूर क्रिएट हो गई कि फ्यूचर में उसे एक बर्डन हो गया कि उसे ये जो लोन लिया उसने वो इंटरेस्ट के साथ पे करना है, तो इसीलिए इसे हम डेट रिसीट्स कहते हैं। सो दिस ऑल टुगेदर मेक्स कैपिटल रिसीट्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड मेजर पोर्शन ऑफ बजट, दैट इज बजट एक्सपेंडिचर। अभी हमने देखा व्हाट वाज बजट रिसिट, अब हम देखेंगे बजट एक्सपेंडिचर। रिसिट का मतलब पैसा आना, अब एक्सपेंडिचर का मतलब पैसा खर्च करना या स्पेंड करना किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या स्कीम पे। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होंगी वो सारी सोशल वेलफेयर के लिए ही होंगी, राइट। तो बजट एक्सपेंडिचर इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। जितना भी पैसा गवर्नमेंट किसी सेक्टर में लगाती है या खर्च करती है या स्पेंड करती है, उसे हम बजट एक्सपेंडिचर के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये सब एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ही होना चाहिए, ठीक है।
अब ये जो होता है जो बजट एक्सपेंडिचर, ये किन किन सेक्टर्स में गवर्नमेंट मतलब किन किन जगहों पे पैसा खर्च करती है, तो या तो वो किसी सेक्टर पे खर्च कर सकती है, या तो किसी डिपार्टमेंट पे, किसी मिनिस्ट्री पे, या ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ों पे, या सोशल वेलफेयर के लिए। ओके, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बजट एक्सपेंडिचर। और बजट एक्सपेंडिचर जो होता है वो दो मेजर हेड के अंदर होता है, या तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सो नाउ वी विल डिस्कस बोथ revenue expenditure and capital expenditure in detail. So now the first part of budget expenditure is revenue expenditure. So जो expenditure या जो spending government की, पैसा जहाँ government खर्च कर रही है, वो पैसा अगर गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट कर रहा है, मतलब ना ही वो एसेट क्रिएट कर रहा है और ना ही वो लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर रहा है, मतलब ना ही एसेट क्रिएशन हो रहा है ना ही लाइबिलिटीज का रिडक्शन हो रहा है, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। नाउ दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स कुछ मैं आपको बताऊं, दैट इज सैलरी, वेजेस, पेंशन, डिफेंस सर्विस, और मतलब डिफेंस सर्विस मीन्स स्पेंडिंग इन डिफेंस सर्विसेज, देन सब्सिडीज देना। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, इन सब में क्या होता है कि इनसे कोई एसेट तो क्रिएट हुई नहीं। अब मैं आपको सैलरी दे रही हूँ तो आप उसमें मेरा कौन सा एसेट क्रिएट हो रहा है? नो एसेट क्रिएशन टेक्स प्लेस। उसके बाद कोई लाइबिलिटी भी नहीं हो रही है। आपने मेरे लिए काम किया, मेरी कंपनी के लिए, मेरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो मैंने आपको सैलरी दी। ओके, सो ये कोई इसमें ना ही एसेट क्रिएट हो रहा है ना ही लाइबिलिटी का कोई रिडक्शन हो रहा है, तो इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ओके, एंड इट इज वन मोर थिंग, इट इज रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब लाइक एक रिपीटिशन होता है। जैसे कि सैलरी है वो मैं आपको मंथली बेसिस पे दूंगी, वेजेस मैं आपको मंथली बेसिस पे दूंगी, राइट? सो इस चीज को रिकरिंग कहा जाता है, जो रिपीट हो। नाउ द सेकेंड पोर्शन ऑफ बजट एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा स्पेंडिंग गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट कर रही है प्लस लाइबिलिटीज का भी रिडक्शन हो रहा है, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट ऐसी जगह पे जहाँ खर्च करे जिससे उसका एसेट भी क्रिएट हो रहा हो और साथ में लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो रही हो, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स हैं वो है, देखिए सुनिए, लोन्स टू स्टेट। लोन्स टू स्टेट क्योंकि अब मैं आपको उधार दूंगी तो जाहिर सी बात है मुझे पता है कि आप मुझे उधार वापस करोगे विद इंटरेस्ट, तो क्या हो रहा है, मेरे लिए लाइबिलिटी सॉरी एसेट क्रिएट हो रहा है, राइट? उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड्स, मेट्रो, मशीनरी, फैक्ट्रीज, ये सब कहीं ना कहीं मेरे लिए ना एक एसेट है। सो गवर्नमेंट के लिए वो एक एसेट होता है, फ्यूचर में वो एक सोर्स ऑफ इनकम बनती है गवर्नमेंट के लिए, इसलिए दे आर रेफर टू एज एसेट्स। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय द गवर्नमेंट, मतलब कभी गवर्नमेंट ने मान लीजिए कोई लोन लिया हो तो उस लोन को जब गवर्नमेंट रीपे कर देते कि भैया लो अपना जो मैंने कर्ज लिया था वो आप ले लो, आप मतलब मैंने रीपे कर दिया, तो एक तरीके से ये लाइबिलिटी का रिडक्शन ही हुआ, क्योंकि अब मेरे सर से एक बोझ हट गया कि मुझे इनको लोन वापस पे करना है विद इंटरेस्ट। ओके, तो ये एक तरीके का लाइबिलिटी रिडक्शन हुआ। और इससे पहले मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए वो सारे क्या था, एसेट क्रिएशन। और ये एक और थिंग, ये नॉन रिकरिंग नेचर होता है, विच मीन्स कि इट डजंट हैपन ऑन अ डेली बेसिस और ऑन अ रिपीटेशन इज नॉट। सो लेट्स डिस्कस द की फैक्ट्स अबाउट द यूनियन बजट ऑफ इंडिया. So the first one is who presented the budget the maximum times. So it was Morarji Desai who presented the union budget 10 times, followed by P. Chidambaram who presented the budget 9 times. And we have the third one also, that is Pranam Mukherjee ji who presented it 8 times. Now moving on to the next question, that is the longest budget speech. The longest budget speech in terms of duration was given by Nirmala Sitharaman ji in 2020, and it was 2 hour 42-minute long speech. So when we talk about the shortest budget speech in terms of words, it was given by Hirubhai Muljibhai Patel in 1977. It had around 800 words. Moving on to the next one, that is which was the longest budget speech in terms of words. So it was given by Manmohan Singh ji in 1991, and it had around 18,650 words. Okay.
With this, we come to the end of the video. Thank you for watching our video and do like and subscribe our channel and visit our website. And do follow